इब्रानियों के पुस्तक में। So if you have your Bible, we'll turn to the book of Hebrews chapter 11. अगर आपके पास बाइबल है आप खोल सकते हैं इस समय इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 में। What I'm going to do is I'm going to read 3 verses from chapter 12. और अध्याय 12 से हम 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। Hebrews chapter 12 verse 1, 2 and 3 we will read. और इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 12 1, 2 और 3 को हम पढ़ेंगे इस समय। And I'm going to read verse number 1, 2 and 3. You follow along with me. और हम 1, 2 और 3 को हम पढ़ेंगे और हम हमें अनुसरण कर सकते हैं इस समय। Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with the patience the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाही का ऐसा बड़ा बादल हम को घेर हुए हैं तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उझलने वाली पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं और धीरज से हम दौड़ें। Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। When we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को हम जब पढ़ते हैं, we are reminded this morning that our eyes need to be focused upon the Lord Jesus Christ. हमें याद दिलाता है कि हमारे जो नजरें हैं, हमारी जो आंखें हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। There is a lot of fears right now around the world. आज इस संसार में बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से डर हैं। People are talking about it a lot. और लोग आज इस चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। If you see on WhatsApp status, it's all about corona. अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस में अगर आप देखते हैं तो कोरोना के बारे में आप देख पाएंगे। If you see on the Facebook post, it's all about corona. अगर आप फेसबुक में भी देखेंगे लोग कोरोना के बारे में लिख रहे हैं। If you see read on the newspaper, it is about corona. अगर आप खबर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कोरोना के बारे में। You take to the television, it is about the corona. जब दूरदर्शन में देखेंगे वहाँ पे भी आपको कोरोना के बारे में दिखेंगे। You see on the internet, it is about this coronavirus. आप इंटरनेट में भी जब देखेंगे आपको कोरोना वायरस के बारे में दिखेंगे। And everything tells us how many people are dying every day. और सब चीजें आपको कहेंगे कि कितने लोग मर चुके हैं। How many people are getting sick every day. और कितने लोग बीमार हो रहे हैं। And the problem, and there are many people who are becoming sick and fearful because their eyes are set upon something that they are not supposed to set it upon. और बहुत से लोग इन्हीं वजह से बहुत से लोग बीमार हो चुके हैं, बहुत से लोग डर चुके हैं क्योंकि उन लोगों की जो नजरें कुछ और जगह के ऊपर हैं। We are commanded as a Christian, we are commanded that our eyes should not be on anything else but upon Jesus. लेकिन हमें कहा गया कि हमारे जो नजरें, हमारी जो दृष्टि है किसी और के ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना When चाहिए। your eyes are on the virus and the news of the world, then fear will come in your heart. जब आपकी नजरें खबरों में होंगे, वायरस के ऊपर होंगे तो आपके अंदर डर हो जाएंगे। When your eyes is upon the Lord Jesus Christ, boldness comes in your life. जब आपकी नजरें यीशु मसीह के वहाँ पे होंगे तो आपको सामर्थ और आपको साहस मिलेगा। When your eyes are upon the newspaper, you get bad news in your mind. जब आप न्यूज़पेपर के और आपकी नजर को रखेंगे तो आपको हमेशा खराब खबरें मिलेंगी। When your eyes are upon the Lord Jesus Christ, your heart and mind is filled with the goodness of God from the Word of और God. जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर अपनी नजर को बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा खबर मिलेंगे जो यीशु मसीह की वचन की ओर से है। People spend money every day to buy newspaper, to read all the bad news, so that their life is filled with all that bad news. और बहुत से लोग हर दिन उन लोग पैसा को खर्च करके उन लोग खबरें को खरीदते हैं ताकि उन लोग के जीवन में खराब न्यूज़ आ सके। But God has given you and me a good news of boldness and courage in the Word of God if we will read it every day. लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक अच्छा
सुसमाचार दिया जहाँ पे हम हर दिन रीड करने से हमें अच्छा खबरें हमें मिलेंगे। And so we are told to look unto Jesus. तो हमें कहा गया कि हमारी नजरें यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। My dear friend, when your eyes are set upon the Lord Jesus Christ, जब आपकी जो नजरें यीशु मसीह के वहाँ पे होंगे, He is going to put an edge of protection around you. क्या करेंगे? यीशु मसीह आपके चारों ओर आपको रक्षा करके रखेंगे। As a Christian, we are told to walk by faith and not by sight. और एक मसीह होने के नाते हमें कहा गया कि ताकि हम विश्वास से चले, हमें नजरों से नहीं। You see, when things are all fine, we can talk big things about faith. जब चीजें सब अच्छे होते हैं तो हम बहुत ही अद्भुत हम बातों का हम बातचीत कर सकते But हैं। it is in such a time as this that God wants us to exhibit our faith by our works. लेकिन ऐसा एक समय है जो जहाँ पे हम अपने विश्वास के द्वारा हम अपने कार्य को ताकि हम दिखा सकें। Because faith without work is a dead faith. क्योंकि अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो मृत्यु है। So we can talk big things about faith with proper definition, but if we don't put that into action, then your faith is a dead one. तो हमारे जो विश्वास है हम सही प्रकार से हम बातचीत कर सकते हैं, अद्भुत अद्भुत चीजों को हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो वो कोई फायदा नहीं है। This morning you are here because your eyes are focused on Christ. तो आज सुबह में आप यहाँ पे इसी वजह से क्योंकि आपकी जो नजर है यीशु मसीह की ओर है। This morning you are here because you are filled by the Holy Spirit of तो God. आज सुबह में आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। How do I know that you are filled by the Holy Spirit of कैसे मुझे God? मालूम है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा और मैं पवित्र आत्मा में भरा हुआ हूँ? Because I know that because the Bible says when God's people are filled by the Holy Spirit of God, boldness and courage comes in their life. मुझे मालूम है क्योंकि वचन में लिखा है जब परमेश्वर के जन जो इकट्ठा होते हैं, जो पवित्र आत्मा उन लोग के ऊपर आते हैं तो उन लोग सामर्थ से हम उन लोग भर जाते हैं। And because of that boldness and courage, you are able to get up and put your eyes upon Jesus and come and obey the word of God than man. और साहस के वजह से, सामर्थ के वजह से इसलिए आप यहाँ पर आकर आप परमेश्वर की ओर देख सकते हैं और आप किसी के आगे भी आप खड़े हो सकते So हैं। the Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. इसीलिए कहा कि और विश्वास करने और कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर हमें ताकते रहना चाहिए। So if we talk about faith, then we need to act on that faith because Jesus is our author. अगर हम विश्वास के बारे में बातचीत करते हैं तो हमें उस प्रकार से हमें चलना भी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह हमारा ऑथर है। Look very clearly in verse number 2. और वचन 2 में आप बहुत से ध्यान से देखिए, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, who for the joy that was set before him endured the cross, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा को तुच्छ करके क्रूस के दुख सहा, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. और परमेश्वर की ओर सिंहासन के दाहिने ओर बैठा। Jesus did two things for you and me. यीशु मसीह ने हम सभी के लिए 2 चीज को किया। He knew what is going to come in life. और यीशु को मालूम था कि हमारे जीवन में क्या आने वाले Now हैं, Jesus had to endure the cross. और यीशु मसीह ने हमारे दुख कष्ट को सहा, Jesus had to carry the cross for you and for me. और यीशु मसीह ने क्रूस को हमारे लिए उठाया, He had to die on the cross by suffering for you and me. और यीशु मसीह ने हम हरे जनों के लिए मरा दुखों को उठाने के द्वारा। Now why should Jesus go through all this? क्यों यीशु मसीह इन सब चीजों के द्वारा जाएंगे? It is all painful. ये सब दुख भरी है, It's a shameful, the Bible says. ये बहुत लज्जित की बात है। The बाइबल कहता Bible है, says despising the shame. और बाइबल कहता है लज्जा को उन्होंने तुच्छ किया, People pulled his beard. और लोगों ने उसकी दाढ़ी को खींचा, They spit on his face. और उन लोग ने यीशु मसीह के ऊपर थूका, They beat on his back. और यीशु मसीह के पीछे उन लोग ने मारा, They dragged him. यीशु मसीह को उन्होंने खींचा, They nailed him on the cross. और उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, And they crucified Jesus on the cross. और यीशु मसीह को उन्होंने क्रूसिफाई किया They क्रूस में, mocked him, the Bible says. और उन लोग ने यीशु मसीह के ऊपर मजाक उड़ाया। But Jesus looked at the future. लेकिन यीशु मसीह ने हमारे भविष्य को देखा। The Lord Jesus did not just say, oh, this is painful. I'm just going to stay home and I'm not going to endure this cross. और यीशु मसीह ने केवल ये नहीं कहा कि नहीं बहुत ही दुख भरी है, मैं क्रूस पे नहीं मरूंगा। But Jesus knew if he would endure the cross, लेकिन यीशु को मालूम था कि अगर वो क्रूस को एंड्योर करता, if he would despise the shame, अगर वो लज्जा को अगर तुच्छ करता, and after he died and rose again on the third day, और मरने के बाद और पुनरुत्थान के बाद that salvation will be given to you and to me. जो उद्धार है हमारे जनों को दिया जाएगा। It is not that Jesus enjoyed going on the cross. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह को बहुत ही आनंद मिला क्रूस में जाने से। It's not that he enjoyed dying for you. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह को आनंद मिला हमारे लिए But मरने the की वजह Bible से, says he suffered. लेकिन बाइबल कहता है कि वो हमारे दुख कष्ट को सहा, It says he endured the cross, he tolerated that pain. और उसने सहा क्रूस को।
just because of one reason, केवल एक ही कारण के वजह से, so that you will be redeemed and delivered from hell. ताकि आप पाप से और नर से ताकि छुटकारा प्राप्त कर सकें। He despised the shame, the Bible says. और यीशु मसीह ने लज्जा को तुच्छ किया, Like people mocked at him. और लोगों ने उसके ऊपर मजाक उड़ाया। They said, oh, you said you are a healer. Now look, you are hanging on the cross. लोगों ने कहा कि देखो तुम अपने आप को चमत्कार करने वाला कहते हो, देखो अभी तुम क्रूस में हो। Look, you said you are the son of God. Look, now you cannot save yourself. देखो तूने अपने आप को कहा कि तुम यीशु मसीह के परमेश्वर के संतान हो, अभी आपको बचा नहीं सकते हो। They mocked at him. उन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर मजाक But the उड़ाया। Bible says he despised the shame. लेकिन बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने लज्जा को तुच्छ किया। My dear friend, he despised the shame because of you and me. मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने लज्जा को तुच्छ किया हम सारे जनों के लिए, So that you and I will not be ashamed of anything. ताकि हम हर कुछ चीजों के ऊपर ताकि हम लज्जित ना हो। The Bible says, for I'm not ashamed of the gospel, for it is the power unto salvation. और परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमें लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सुसमाचार है परमेश्वर की और सामर्थ की बात है। Today I'm not ashamed of Jesus Christ. आज मैं यीशु मसीह के ऊपर लज्जित नहीं हूँ। I'm not ashamed of the gospel of Christ. मैं यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए लज्जित नहीं हूँ। I'm not ashamed of the church of Jesus मैं Christ. यीशु मसीह की कलीसिया के लिए लज्जित नहीं हूँ। We should not be ashamed of the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के लिए हमें लज्जित नहीं होना चाहिए, Because of Christ who endured the cross for you and for me in order to give you and me redemption from hell and sin. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे दुख कष्ट को सहा, क्रूस को सहा, ताकि हम हमारे जन छुटकारा पा सके। My dear friend, no matter what happens in life, our eyes should be focused on Jesus हमारा Christ. जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो नजरें हैं यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। I believe one thing for very sure. और मैं एक विश्वास करता हूँ, There are many villages and many places in Goa are getting infected. और बहुत से गांव हैं जो गोवा में बहुत से लोगों को कोरोना वायरस हो चुके हैं, But by God's grace, our village is protected. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हमारे जो गांव है ये वो प्रोटेक्टेड हो चुके I'm हैं। very much convinced it's because we come together here and we pray and we exalt and we magnify and we worship the Lord Jesus Christ. क्योंकि इसीलिए हो पाया क्योंकि हम यहाँ पे आकर इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं। When God's children gather together and pray, God will take care of their places. जब परमेश्वर की संतान लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर उन जगहों को रक्षा करेगा। I think your place also is fine, right? That's because of one man. And he stands at the gap for his village. और एक ही व्यक्ति की वजह से वो जगह अभी प्रोटेक्टेड है। तुम्हारा भी जगह में कोई अभी भी केस नहीं आया. That's because of them, and God is protecting their village because of this family. तो परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के लोगों की वजह से आज वो जगह इस समय रक्षा My है। dear friend, I'm telling you, when God's people stand in the gap, God will protect that village. मेरे प्रिय, जब परमेश्वर के लोग खड़े होते हैं तो परमेश्वर उन जगहों को रक्षा करता है। The Bible tells us, looking unto Jesus. परमेश्वर की वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह की ओर ताकना चाहिए। Who is our role model today? सॉरी सर, Who is our role model today? Example. हमारा रोल मॉडल कौन है आज? Not the police officers. पुलिस ऑफिसर नहीं है, Not the prime minister. और प्रधानमंत्री नहीं है, Not the president of America. और अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं है, But the Lord Jesus लेकिन Christ. हमारा यीशु मसीह। He endured the cross. यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को सहा He despised the shame और हर एक लज्जा को तुच्छ किया, because he loved you and me. क्योंकि यीशु मसीह हमारे जनों को प्यार करता And है। he said, you know what? This is painful. और यीशु ने कहा कि ये बहुत दुख भरी है, This is hurting me. ये बहुत मुझे दुख दे रहा है। Oh, the pain and the blood that is pouring, it's painful. जो दर्द है, जो लहू है मेरे बहा है, वो बहुत ही दर्द भरी है। I could just sit at home and say, God, you just take care of it. और मैं घर में बैठते हुए मैं कह सकता था कि यीशु परमेश्वर आप सब चीजों को रक्षा But करिए, every time the temptation came to quit the crucifixion, लेकिन जो परीक्षाएं आई यीशु मसीह के आगे, जो क्रूसिफिक्शन के ऊपर, Jesus said, उसका मौत, उसकी मौत के ऊपर, he said, Lord, not my will, but thy will be done. और यीशु ने उस समय कहा कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरा हो। Lord, I wish I can escape this, but I'm still going to go through this because I want to do thy will, O Father. प्रभु जी ये मैं छिपना नहीं चाहता प्रभु जी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी इच्छा पूरा हो। This morning, you and I have the same thing in front of us. और ये हमारे आज जीवन में भी आगे, हमारे आगे वही है आज। Are we going to do our will, or are we going to do the will of the Lord Jesus क्या हम अपने Christ? इच्छाओं को पूरा करेंगे या फिर परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करेंगे? The Lord Jesus endured the cross in order to give you and me forgiveness of
sins. यीशु मसीह ने हम हर जनों के लिए क्रूस को सहा ताकि हमें छुटकारा मिल सके। He endured the cross in order to give us redemption from hell. और यीशु मसीह ने क्रूस को सहा ताकि हम नर से ताकि हम छुटकारा पा सके। He endured the cross that you and I will become the sons of God. यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को सहा ताकि हम हर जन परमेश्वर की संतान बन सके। He endured the cross that we may be delivered from hell and be translated into heaven. और हम यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को सहा ताकि हम नर से छुटकारा पा सके और हम सर को जा सके। The Bible tells us to consider Christ. और परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमें यीशु मसीह को हमें ध्यान रखना For चाहिए। consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम्हारा निराश होकर साहस से ना छोड़ दो। Dear friend, the Bible says as the days goes by, जैसे दिन आगे बढ़ते रहता है things are going to get worse and bad. और जो चीजें हैं वो बहुत ही खराब होते जाएंगे। And this will be the time of testing for God's children. और ये परमेश्वर के हर एक बच्चों के लिए एक टेस्ट जैसा होगा। Are we looking unto Jesus or are we looking unto ourselves? क्या हम यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं या फिर हम खुद के ऊपर हम देख रहे हैं इस Are समय? we going to say, well, I'll just obey man for a season and then I will look unto everything? क्या हम ये कहेंगे कि मैं कुछ पल के लिए मनुष्य के ऊपर विश्वास करूंगा उसके बाद मैं परमेश्वर के ऊपर A रखूंगा? lot of Christians have surrendered themselves to obeying man with their wisdom than to obey God with God's wisdom. और बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने जीवन को समर्पित किया अपने ज्ञान के द्वारा उन लोगों को मानने के लिए, पालन करने के लिए। The book of Hebrews tells us a little story about Moses. और इब्रानी के पुस्तक में मूसा के बारे में एक स्टोरी हमें बताती है। In chapter 11, verse 24 through 27, और अध्याय 11 और 24 से लेकर हम 27 से हम देखते हैं। we read about Moses enduring something. और हम मूसा के बारे में देखते हैं, सहन करने के बारे में। You and I should be like Moses, dear friend, in such a time as this. मेरे प्रिय, हम हर जनों को ये समय में हमें मूसा के जैसा होना चाहिए। Our eyes should be focused on Jesus. हमारे जो नजरें यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, For Jesus is our role model. क्योंकि यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। His eyes was focused upon us when he died on the cross. जब यीशु मसीह ने क्रूस पे मरा तो उसकी नजरें हमारे ऊपर थी। Our eyes should be focused upon Christ right now. तो इस समय हमारी नजरें भी यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। Moses was born and raised up in a big, huge royal palace. और जो मूसा है एक अच्छा जगह में उसको पाला पोसा गया था। He was brought by Pharaoh's daughter into the palace. और फारून की जो पुत्री थी उसके द्वारा उसको बड़ा किया गया The था। Bible says Moses was raised up with good education. और मूसा अच्छा एजुकेशन के द्वारा वो बढ़ते चले गए। He got the best of food to eat. और अच्छा अच्छा खाना उसको मिला खाने He के लिए, got the best of clothes to wear. और अच्छा कपड़े उसको पहनने के लिए मिला। Moses had so much of respect in that country. और उस जगह में मूसा को बहुत सारे रिस्पेक्ट मिलते थे। When the Pharaoh would die, Moses would be the next in line. जब फारून मरने वाले थे तो मूसा को वो जगह को मिल जाता। Moses was a prince in that country. और मूसा उस जगह में प्रिंस था। But then one day Moses, when he became big, लेकिन जब मूसा एकदम बढ़ने लगे, Moses realized that he is not a Gentile, he is not an Egyptian, but he belongs to the people of God. और लेकिन मूसा ने जान पाया कि वो अन्य जातियों में से नहीं लेकिन परमेश्वर की जातियों में से है। Moses realized that he is not supposed to be worshipping the idol, but he is a child of the God of Israel. और मूसा ने जान पाया कि मुझे मूर्ति की पूजा करने के लिए यहाँ पे नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए हूँ। The Bible says, and by faith Moses, when he was come to years, verse number 24, refused to be called the sons of Pharaoh's daughters. और विश्वासी से मूसा ने सहन होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। First thing, my dear friend, if you're going to focus your eyes upon the Lord Jesus Christ, you will have to refuse somebody because you cannot obey two people. मेरे प्रिय, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर आप अपने ध्यान को रखना चाहते तो दो लोगों के ऊपर अपने ध्यान को आप नहीं रख You सकते हैं। cannot obey God and you cannot obey government. आप परमेश्वर को पालन नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को पालन नहीं कर सकते। Now किस we समय need पे? to obey and follow the government as long as they don't come against your faith. और जितना दिन हमारे विश्वास के विरुद्ध लोग नहीं आते हैं, हमें गवर्नमेंट को पालन करना चाहिए। God says we need to obey of the government. और वचन हमें बताते हैं कि हमें सरकार को पालन करना चाहिए। But if anybody comes against your faith, लेकिन अगर कोई आपके विश्वास के विरुद्ध आ जाते हैं then you choose to obey God. तो उस समय आपको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहिए। And my dear friend, if you choose those things, अगर आप उन चीजों को चूज करते हैं there will be some repercussion or consequences. और आपके जीवन में कुछ
बाधाएं होंगे, कुछ समस्याएं होंगे, but there is a great blessing awaiting you for that. लेकिन उसके लिए आपको आगे बहुत ही आशीष आपके लिए अपेक्षा कर रही है। Or you can choose to enjoy for a season obeying what does not belong to God. और जो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो चीजों का आप कुछ पल के लिए आप आनंदित मनाना And for चाहते a हैं, season you may like, okay, I'm comfortable, I didn't get any lauded charge, I'm fine. शायद कुछ समय के लिए आप खुशियां मना सकते हैं उन जगहों में रहकर, But then later on, लेकिन कुछ पल के बाद you will always feel guilty for not obeying God, but man. आप हमेशा शोकित हो जाएंगे क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया Verse है। number 24 says, और 24वां वचन में कहता है, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. और विश्वास ही से मूसा ने जो सयान होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। Refusing to be called Pharaoh's daughter, the son of Pharaoh's daughter, is a big thing. और फिरौन की बेटी कहलाने से मना करना वो बहुत ही बड़ी बात है। It's like going against the authority of that country. और उस कंट्री की, उस शहर की विरुद्ध जाने के लिए वो सोचा। And it is a direct disobedience to the topmost position. और सबसे जो वहां पे मुख्य था उसके विरुद्ध उसने आज्ञा को पालन नहीं किया। But Moses was not looking for temporary blessing, but for a permanent blessing. लेकिन मूसा ने कुछ समय के लिए जो आशीष है उसके लिए नहीं देखा, लेकिन हमेशा के लिए जो आशीष है उसके ऊपर So देखा। if you say you have faith, then you need to act it with work. अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर विश्वास है, तो आपको उसको विश्वास को दिखाना चाहिए क्रिया के Then you will द्वारा। have to make a choice in life. तो आपको आपके जीवन में आपको चॉइस बनाना पड़ेगा, Either God or man. शायद परमेश्वर नहीं तो मनुष्य। Look at verse 25. और 25वां वचन में देखो, The Bible says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। Moses said, I know it's going to be difficult. और मूसा ने कहा कि मुझे पता है ये बहुत ही समस्या भरी होंगे, I know disobeying the law of man is definitely going to be difficult. और मनुष्य की जो व्यवस्था है उसको ना मानना वो बहुत ही समस्या भरी होंगे। But I'm going to make a choice today. लेकिन आज मैं एक चॉइस रखूंगा अपने जीवन I'm में, going to choose to obey God. मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना चाहूंगा। I know it's going to hurt me right now, मुझे पता है इस समय मुझे बहुत ही दुखी होंगे, but for a long run it is going to be a blessing. लेकिन आगे जाकर मुझे आशीष मिलेंगी। Today I may feel a little comfortable by obeying man and disobeying God. शायद आज मनुष्य की आज्ञा को पालन करने से मुझे कुछ पल के लिए आनंद मिल सकती है, But tomorrow it is going to come against me. लेकिन कल को वो मेरे विरोध आ जाएंगे। But Moses said, I'm going to obey God. लेकिन मूसा ने कहा कि मैं परमेश्वर का पालन करूंगा। I'm willing to suffer affliction for a season right now. मैं कुछ पल के लिए इस समय दुख कष्ट सहना चाहूंगा। I'm willing to suffer right now. मैं इस समय दुख कष्ट को सहना चाहूंगा। I'm willing to be ashamed right now. मैं इस समय लज्जित होना चाहूंगा, I'm willing to get hurt by people right now. और लोगों के द्वारा मैं हर्ट इस समय होना चाहूंगा। But I'm going to choose the suffering of affliction with the people of God. लेकिन परमेश्वर की जनों के साथ मैं दुख कष्ट को सहना चाहूंगा। So what Moses did is he chose to reject Pharaoh's law and chose to obey God. मूसा ने क्या किया, फारून की जो आज्ञाएं हैं उसको उसने इनकार किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का उसने पालन करना So he सोचा। took up the cross upon him. तो मूसा ने क्या किया, क्रूस को अपने ऊपर लिया। When I say cross, I'm talking about the afflictions upon जब him. मैं क्रूस कहता हूँ इसका मतलब दुख भरी चीजों को मैं बारे में बात कर रहा हूँ। So Moses chose rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season. तो मूसा ने परमेश्वर की जनों के साथ दुख भोगने के लिए उसने अधिक उत्तम लगा। I'm going to tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। Now it is all about Corona. अभी इस समय हमेशा कोरोना के बारे में The truth is, there's a lot of wrong things in this news. जो सत्य है यही कि जो समाचार में बहुत सारे खराब चीजें हैं। But this is a practice. This is a group of people trying to control the world. लेकिन ये कुछ प्रकार के लोग हैं जो इस संसार को कंट्रोल करना चाहते हैं। And they have succeeded, and now they know that so-called Christians will obey man and not God. और उन लोगों ने सफलता प्राप्त किया क्योंकि उन लोगों को पता चल गया कि बहुत से लोग हैं जो मसीह लोग कि उन लोग मनुष्य का उन लोग आज्ञा का पालन करते हैं। The world now knows that many Christians will not obey God but man. उन लोगों को पता है कि सब बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे लेकिन मनुष्य को पालन करेंगे। In fact, in America, a place called California, they are told not to sing in the church anymore. कैलिफोर्निया में अमेरिका में उन लोगों को कहा गया कि उन लोगों को
परमेश्वर की महिमा गाना नहीं चाहिए। They were told to close the church, लोग कहा गया कि कलीसिया को बंद करने के लिए, and now the church is open. और उन लोग की कलीसिया अभी खुल चुके हैं। But in California, they cannot sing the glory of God and the praises of Christ. लेकिन उस जगह में उन लोग गा नहीं सकते परमेश्वर की महिमा के लिए। Now some of the pastors are saying, "Oh, what did we do? Why did we close the church during Corona?" और बहुत से पासवान लोग कहे कि हमने क्या किया, हमने क्यों कोरोना के समय हमने बंद किया कलीसिया को। But there are many pastors say, "Okay, we'll obey the government, we'll not sing, we'll only pray and read the Bible." और बहुत से पासवानों ने कहा कि देखो इस समय हम सरकार का पालन करेंगे, हम गाएंगे नहीं, बस हम गवर्नमेंट का पालन करेंगे। And step by step, they are taking your right in obeying God. और कदम कदम में उन लोग क्या किया, आपकी जो अधिकार है उन लोग ने छीन लिया और परमेश्वर के पालन करने के लिए। When December is going to come, they are going to cause more problems. जब दिसंबर आएंगे तो और समस्याओं को उन लोग अपनी जीवन में लाएंगे, Next year, they are going to make more problems. और अगले साल में और ज्यादा समस्याओं को लाएंगे उन लोग। Ultimately, they have one motto in their mind. और अंतिम में उन लोग का एक सोच विचार है, They want to make God's people stop worshipping God. उन लोग चाहते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन लोग ताकि परमेश्वर की आराधना ना करें। They want to take the Bible out of your hand. आपके हाथ से उन लोग बाइबल को छीनना चाहते हैं। That's why you and I need to memorize the Word of God. इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को याद करना चाहिए। Because even if they take this book out of our hand, अगर भी उन लोग हमारे हाथ से बाइबल को छीन ले, God's Word should be memorized in your heart. जो परमेश्वर के वचन है हमारे हृदय में याद करना चाहिए। That's why reading Bible is important every day. इसलिए हर दिन बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। Because even if you're not able to memorize word by word, अगर आप शब्दों के द्वारा अगर आप याद नहीं कर पाते हैं, but at least you will know what the Bible says. तो आपको मालूम होगा फिर भी कि परमेश्वर की वचन क्या कहता है। And that's why you have to read the Word of God. इसलिए आपको हर दिन बाइबल को पढ़ना चाहिए। Read every day. हर दिन आप बाइबल को पढ़िए। You know, if you look at my Bible, when I read, I underline, I mark with the colors. जब मेरे बाइबल को देखेंगे मैं हर जगह में मैं अंडरलाइन करता हूँ, I mark it with colors. और कलर के द्वारा मैं मार्क करता हूँ। Because it helps me to remember in my mind. तो ये मुझे याद दिलाता है और मुझे मदद करता है याद करने के लिए। And so we need to do something to memorize the scriptures. तो हमें कुछ करना चाहिए परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए, And we need to hide it in our heart. और हमारे हृदय में हमें छिपा के रखना चाहिए, Because no one can take that out of you. क्योंकि कोई भी हमारे हृदय से वो बाहर नहीं लेके जा So सकता है। tomorrow then the Word of God, when the Bible is snatched away from you, जब कल को बाइबल आपके हाथ से छीना जाएगा, the Word of God cannot be snatched away from you. जो आपके हृदय में बाइबल है वो कभी भी आपके हृदय से छीना नहीं जाएगा, Because the Word of God is memorized and hidden in your heart. क्योंकि जो परमेश्वर की वचन आपके हृदय में छिप गया है। So you and I as a Christian, we need to prepare now. तो एक मसीह होने के नाते इस समय हमें तैयारी करना चाहिए, Because there's a day that's going to come. क्योंकि ऐसा दिन आने वाले हैं। They're going to tell you cannot join again for prayer. उन लोग कहेंगे कि आप इकट्ठा नहीं हो पाएंगे They're प्रार्थना going के to लिए। tell you cannot worship God in the church उन anymore. लोग कहेंगे कि कलीसिया में आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। They're going to tell you that you cannot even sing and pray in your house. उन लोग कहेंगे कि आपके घर में भी आप गीत नहीं गा सकते हैं। You may ask, Pastor, is this really going to happen? आप उस समय कहेंगे क्या ये होने वाले हैं? Yes, it will happen. हाँ, ये होंगे, It's written in the Word of ये God. बाइबल में लिखा गया है। But you and I should do something very powerful. लेकिन हमें हर जन को कुछ करना चाहिए। You need to choose to obey God and not man. आपको चूज करना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा पालन करने, मनुष्य के Because नहीं। there is a joy that is set before you. क्योंकि एक आनंद है जो हमारे लिए रखा गया है आगे। Don't be afraid of a man who can kill your body. जो मनुष्य आपकी शरीर को हत्या करेगा उसको डरिए मत। Even if they kill your body right now. अगर उन लोग आपकी शरीर को इस समय मार देंगे, The Bible says your soul and spirit in the next second will be in heaven. बाइबल में लिखा गया कि आपकी जो आत्मा और प्राण है स्वर्ग में इसी समय चले जाएंगे, In the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। Now I'm not trying to put fear in your heart and मैं mind. आपके हृदय में और मन में आप डर नहीं पैदा करना चाहता हूँ। I'm just making you bold in God. मैं आपको परमेश्वर में साहसी बनाना चाह रहा हूँ। Now one thing is for sure. और एक चीज श्योर है, Before much bad thing happens, और बहुत खराब होने से पहले the Word of God says परमेश्वर के वचन कहता है that God's children will be caught up in heaven. कि परमेश्वर के जो लोग हैं उन लोगों को स्वर्ग में लेके जाएंगे। God will not allow you to suffer much. परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देंगे ताकि आप दुख कष्ट को ज्यादा सहें, But God is going to purify you right now before you go to heaven. लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर इस समय आपको शुद्ध करेगा। So some kind of test will be there before you go to heaven to know whether you are truly in faith or not. तो स्वर्ग में जाने से पहले आपको टेस्ट किया जाएगा कि सच में आप विश्वास में हैं या फिर नहीं। Because not everyone who say I know the gospel, I received the gospel is going to heaven. और बहुत अगर
ऐसा नहीं कि हर कोई जो कहता है कि मुझे गॉस्पेल पता है तो उन लोग सर नहीं जाएंगे। There are a lot of people who prayed a prayer. और बहुत से लोग प्रार्थना भी करते हैं। There are a lot of people who received Jesus. बहुत से लोग जो ग्रहण करते हैं यीशु को। There are a lot of people who know the truth very well. और बहुत से लोगों को सत्य को भी पता है। There are a lot of people who know the doctrine in their mind very much. और बहुत से लोगों को शिक्षा को पता है अपने दिमाग में। But you will be surprised that they will be not in heaven. और आप उस समय सरप्राइज होंगे कि उन लोग स्वर्ग में नहीं है। Why? क्यों? Because their faith was not genuine. क्योंकि उन लोगों को जो विश्वास भी वो सही में नहीं था। The Bible says परमेश्वर के वचन कहता है on the last day कि अंतिम दिन में that many will say, बहुत से लोग कहेंगे, Lord, Lord, प्रभु प्रभु, have we not done so many good works in your name? क्या हमने आपके नाम में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य को किया। But then Jesus will say, लेकिन उस समय यीशु कहेंगे, I never knew thee. मुझे आप कौन है मुझे नहीं मालूम। You see, these people were serving Jesus Christ. देखो ये लोग जो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, They were preaching. उन लोग प्रचार कर They रहे were थे, doing उन miracles. लोग चमत्कार कार्य They कर were रहे थे, casting out the उन devil. लोग शैतान को भगा रहे थे। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, I never knew thee. तुम लोग कौन है मुझे नहीं मालूम। Because you just spoke about faith, क्योंकि आपने केवल विश्वास के बारे में कहा, but you really did not show that by your action. लेकिन उस क्रिया के द्वारा कार्य के द्वारा आपने विश्वास को नहीं There are a दिखाया। lot of people who say they are Christians बहुत today. से लोग कहेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं, But when the test comes, लेकिन जब टेस्ट आते हैं उन लोगों के जीवन they में, fail the test of Christianity. उन लोग जो मसीह के जो टेस्ट उन लोगों को गिर जाते हैं उस समय। So this thing, all this corona is the test for Christians. तो ये कोरोना वायरस वगैरह है या हम मसीहों के लिए एक टेस्ट है। Are you truly in faith? क्या आप सच में विश्वास में हैं? If tomorrow rapture takes place, will you go to heaven with Jesus? अगर कल रैप्चर हो गया, यीशु मसीह हमें दोबारा लेने के So लिए क्या आप before that जाएंगे? rapture takes place, तो यीशु मसीह आने से पहले there will be some testing for us on earth. और संसार में हमारे लिए कुछ टेस्ट होंगे It's just to find out whether you are truly in faith or not. कि ये आप सच में विश्वास में हैं या फिर नहीं। See, you are not saved by works. आप कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं, You are suddenly saved by faith. आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। But the true faith is always going to produce good works. लेकिन जो सत्य जो विश्वास है वो हमेशा फल लाएंगे। So if you are truly saved, तो अगर आप सच में उद्धार पा if चुके you are हैं, truly the child of अगर God, आप सच में परमेश्वर के संतान if हैं, you truly believe in Jesus अगर आप Christ, सच में यीशु मसीह को विश्वास करते then हैं, you are not going to be afraid of the world. तो आप संसार से डरेंगे नहीं You are not going to be obeying man over God, और आप परमेश्वर को छोड़कर आप मनुष्य को आप पालन नहीं करेंगे। but you are going to put God first in your life. आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर को आगे रखेंगे। That's what Moses did. और वही मूसा ने किया। The Bible says, परमेश्वर के वचन कहता है, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season. इसीलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के लिए सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम सोचा। Moses said, I'm okay, I'm willing to suffer, मूसा ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैं लोगों से दुख कष्ट को सहूंगा, but I don't want to obey man. लेकिन मैं मनुष्य का पालन नहीं I करूंगा, want to obey मैं God. परमेश्वर का पालन करना चाहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। This morning, my dear friend, you and I have to make this decision आज की सुबह में हमें डिसीजन लेना चाहिए that I'm going to obey God no matter what. कुछ भी हो चाहे कुछ भी, मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। No matter what happens in life. कुछ भी हो मेरे जीवन में, God became man and died for my sins. परमेश्वर ने मनुष्य बना, मेरे पाप के लिए मरा, And he shed his precious blood और यीशु ने अपने लहू को बहाया to wash away my sin. मेरे पाप को धुलने के लिए। He was buried, वो गाड़ा गया, but he rose again on the third day. लेकिन तीसरे दिन वापस जी उठा, And he did it all for you and for me. और उसने हम हर जनों के लिए किया। And if Jesus gave his life for you and for me, तो अगर यीशु ने अपने जीवन को हमारे लिए दिया है, then you and I should be willing to live for Jesus Christ. तो हमें भी यीशु मसीह के लिए जीना चाहिए। Jesus is not saying die for me. यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए मरो, Jesus said I died for you. यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए मरा, But now Jesus says you live for me. लेकिन इस समय यीशु कहता है कि तुम इस समय मेरे लिए जियो। See, sometimes dying for Jesus is easy. तो कुछ समय यीशु मसीह के लिए मरना बहुत इजी है Because one shot, boom, you're gone. कि एक बार मार देने से आप खत्म हो चुके हैं। But Jesus says, no, I don't want you to die. लेकिन यीशु कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मरे, I died for you. क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए मरा, I gave my life for मैंने you. अपने जीवन को तुम्हारे लिए दिया, And because I gave my life for you, क्योंकि मैंने अपने जीवन को तुम्हारे लिए दिया, now I want you to live for me. तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए जिए। So God wants you and me to live the eternal life. तो परमेश्वर चाहता है कि हम ताकि अनंत जीवन को जिए। Eternal life will not begin after you go to heaven. तो जो अनंत जीवन है वो शुरुआत नहीं होते हैं स्वर्ग में जाने से, Eternal life began the moment you trusted and received the Lord Jesus लेकिन अनंत Christ. जीवन शुरुआत होते हैं जब हम उद्धार पाते हैं उसी समय से। So what Moses did in verse number 26, तो मूसा ने क्या किया 26वां वचन में, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. उसने मसीह के कारण निंदित होने का मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। So, you know what Moses said? The Bible says, esteeming the reproach of Christ. मसीह के लिए उन लोग निंदित होने के लिए उसने सोचा।
Even then, when Jesus was not manifest in the flesh, what Moses was doing was he was obeying Jesus Christ. जब यीशु मसीह ने शरीर में रूप धारण करके संसार में नहीं आए थे, फिर भी मूसा ने क्या किया? यीशु मसीह की आज्ञा का पालन The किया। Bible says, esteeming the reproach of Christ greater reaches. देखा कि उसने मसीह के कारण निंदित होने के मिस्र में उसने ज्यादा समझा। The Bible says even Abraham obeyed Jesus Christ by faith in the Old और Testament. बाइबल कहता है कि अब्राहम ने भी विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। Here we read Moses is choosing to suffer for Christ. और यहाँ पे मूसा ने चूज किया कि मसीह के लिए वो सफर करने के लिए। Moses is saying suffering for Christ is the greatest reach than enjoying the pleasures of this world. और मूसा ने कहा कि यीशु मसीह के लिए दुख कष्ट सहना सबसे बड़ी बात है या संसार के नहीं। See verse number 27. और 27वें वचन में देखिए क्या कहता है? By faith he forsook Egypt, विश्वास ही से वो उसने मिस्र को उसने छोड़ दिया, not fearing the wrath of the king. और जो राजा के क्रोध को नहीं डरकर, For he endured as seeing him who is invisible. क्योंकि उसने वो अनदेखा को देखा हुआ था, वो दृढ़ रहा। The Bible says Moses forsook Egypt. और बाइबल कहता है कि मिस्र को उसने छोड़ दिया। Egypt is the world government that comes against your faith. और जो मिस्र है वो जो आपके विश्वास के विरुद्ध आता है। Moses was not afraid of the anger and the punishment of the world government. और मूसा उस समय वो डरे हुए नहीं थे जो क्रोध या फिर जो पनिशमेंट उसके ऊपर आएंगे। Moses wanted to obey God. मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। Moses wanted to walk and live for God. और मूसा परमेश्वर के लिए जीना चाहते थे। Moses said, you know what? The suffering on this earth is for a season. और मूसा ने कहा कि जो संसार में जो दुख कष्ट है वो बस कुछ पल के लिए है। But living for Jesus is all pleasurable. लेकिन यीशु मसीह के लिए जीना बहुत ही आनंद की बात है। And so dear friend, this morning I want to encourage you तो मैं आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ that there is a day that's going to come soon. कि ऐसा एक दिन आने वाला है बहुत ही जल्द, That the Lord is going to come in the mid of the air. कि यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। Hallelujah. हालेलुया। He's going to come in the mid of the air. और यीशु मसीह बादलों पे आएंगे। He is not coming for everyone on this earth. और वो संसार में सब जनों के लिए नहीं आएंगे, He is coming for His children. और वो अपने बच्चों के लिए आएंगे। He is coming for His people who have put their faith upon Jesus और Christ. यीशु मसीह अपने लोगों के लिए आएंगे जो अपने विश्वास को जो यीशु मसीह के ऊपर रखे हैं। So these sufferings will not be anything for us. जो ये दुख भरी चीजें हैं, हम बस कुछ नहीं हमारे लिए। Can you just imagine that moment क्या आप सोच सकते हैं वो जो समय को when Christ will come in the mid of the air? जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, And because the Bible says within a twinkling of an eye, और वचन कहता है कि हम पलक झपकते ही we will be caught up in heaven हमें उठा लिया जाएंगे स्वर्ग में, to meet the Lord in air. और यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए बादलों में। No more tears, और कोई आंसू नहीं होंगे, no more pain, कोई और दर्द नहीं होंगे, no more suffering, और कोई दुख नहीं होंगे, no more sickness. और कोई बीमार नहीं होंगे। Will be taken up. हमें उठा लिया जाएंगे, All this small little suffering will vanish away. और जो छोटी छोटी जो समस्याएं सब खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। But people who did not choose to obey God, लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किए, who rejected to obey God, जिन लोगों ने इनकार किया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के they लिए, will be suffering on earth. उन लोग संसार में दुख कष्ट को झेलेंगे। There is so much of joy for you and for me as a Christian. लेकिन एक मसीह होने के नाते हमारे लिए बहुत ही आनंद की You बात and है। I have nothing to lose on earth, dear इस friend. संसार में हमें लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। If you have trusted Jesus Christ today, अगर आपने आज यीशु को विश्वास किए हैं, if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, you have only and only everything to gain. आपके पास केवल वही होंगे सब चीजों को प्राप्त करने के लिए। We gain forgiveness of Christ. हम परमेश्वर की क्षमा को हम प्राप्त करते हैं, We gain redemption from hell. हम उद्धार को हम प्राप्त करते हैं, We gain everlasting life. हम अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं, We gain heaven. हम स्वर्ग को हम प्राप्त करते So हैं। keep your eyes on Jesus. तो आपकी नजर को यीशु मसीह के ऊपर रखिए, Looking unto Jesus, यीशु मसीह की ओर देखिए, the author and finisher of our faith. जो हमारे विश्वास की जो सिद्ध है और करता है। Never allow the news of this world to disturb your mind. तो इस संसार की जो खबरें हैं उसको आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए मत Those are दीजिए, all false and lies. वो सब चीजें सब गलत है। Fill your heart and mind with the good news of the word of God. आपके हृदय को हमेशा भर के रखिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। Keep your eyes on Jesus. आपकी नजर को यीशु मसीह के ऊपर रखिए Very हमेशा, soon the Lord is going to come क्योंकि बहुत ही जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं and He is going to take us home. और वो हमें अपने घर लेके जाएंगे। Then all these things will vanish away. तो ये सब चीजें सब मिट जाएंगे, All fear will vanish away. हर डर मिट जाएंगे, All sickness will vanish away. हमारे जो बीमार है वो मिट जाएंगे, All pain will vanish हमारे away. दर्द मिट जाएंगे। There will be only joy in the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति में केवल आनंदित होंगे।
So live for the Lord, dear तो friend. मसीह के लिए जिए मेरे प्रियो। The rest of the life that you have on earth, तो आने वाले जो दिन है आपके लिए संसार में, surrender your life to follow Christ. आपके जीवन को आप समर्पित करिए यीशु मसीह की ओर। Looking unto Jesus, यीशु मसीह के ऊपर the देखिए, author and finisher of our faith. जो हमारा विश्वास का करता है। Choose to obey God. हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर का आज्ञा पालन करने का चूज If करिए। you have to choose between man and God, अगर आपको मनुष्य और परमेश्वर को चूज करना होता है choose God. तो परमेश्वर को चूज करिए, Choose Jesus Christ. यीशु मसीह को चूज करिए, Because he thought you are precious for क्योंकि him. यीशु ने सोचा कि तुम बहुत ही बहुमूल्य हो। And he died on the cross by shedding his blood. वो अपने लहू को बहाने के द्वारा आपके लिए मरा, He is the one true God और वो सत्य परमेश्वर है who became man, जो मनुष्य बना, came into this world, इस संसार में आया living a sinless perfect और life, पवित्र जीवन जिया, took yours and my sins upon him, हमारे हर एक पापों को अपने ऊपर लिया and he died on the cross by shedding his और अपने precious क्रूस पे blood, मरा, वो लहू को बहाने के द्वारा was buried, उसको गाड़ा गया, but he rose again on the third लेकिन day. तीसरा दिन वापस जी उठा। You are saved because you received the Lord Jesus Christ. आप आज उद्धार पाए हैं क्योंकि आपने यीशु ग्रहण किए हैं। If there is anybody who is not saved, अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो उद्धार नहीं पाए हैं, today is the best day. तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। Today is the day to receive Jesus तो आज Christ. ही वो दिन है जो यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। Believe in the Lord Jesus यीशु Christ. मसीह को विश्वास करिए Have your sins forgiven. और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। So my dear friend, तो मेरे प्रियो, as we walk out of this room, जैसे हम इस रूम से हम बाहर we जाएंगे, are going to walk out with our eyes focused on तो Christ. हम बाहर जाएंगे अपने नजर को यीशु मसीह के ऊपर रखते हुए, Not on the news of the TV, और टीवी के ऊपर नहीं, not on the news of the newspaper, और न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं, not what social media tells us और about सोशल this. मीडिया जो कुछ कहते हैं उसके ऊपर नहीं, We are going to follow Christ. लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे होंगे। We're going to believe Jesus. हम यीशु मसीह के विश्वास करेंगे, We're going to believe the word of God. हम बाइबल के ऊपर विश्वास करेंगे, Because as a child of God, क्योंकि एक परमेश्वर के संतान होने के we have नाते nothing to lose. हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं लूज करने We के लिए, have joy awaiting us. क्योंकि हमारा आनंद हमारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं। There's a day that's going to come soon. और ऐसा दिन आने वाले हैं बहुत ही जल्द, The Lord is going to come to take us home. जब यीशु मसीह आएंगे हमें घर में लेके जाने के But लिए। before he comes, लेकिन वो आने से पहले let us not live for men, हमें मनुष्य के लिए नहीं जिएंगे, but let us live for Jesus, तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे, the author and finisher of our faith. जो हमारा विश्वास का करता है। Amen. आमीन। Shall we pray? इसमें हम प्रार्थना करें, Let's close our eyes. इसमें हम अपने आंखों को बंद करते हैं। Lord Jesus, यीशु मसीह, we thank you for this beautiful morning. आज इस सुबह के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं। We thank you for your loving kindness and tender mercies. आपके प्यार और आपके आशीषों के लिए पिता को धन्यवाद देते We हैं। thank you that you have given us your word to prepare ourselves for the coming days. हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, हमें तैयार करने के लिए आने वाले दिनों के लिए प्रभु We जी। thank you for the boldness and courage you have given all of us today. और साहस के लिए पिता जो आपने हम हर जन को दे रखा है प्रभु जी। Help us, O God, today हमें मदद करिए परमेश्वर to पिता, choose to suffer for Christ's sake, मसीह के लिए दुख कष्ट को सहने के लिए प्रभु जी। because there is a joy awaiting us. क्योंकि आनंद हमारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं There is a blessing awaiting us. और आशीष हमारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं। Oh God, we thank you for the forgiveness of sin. पाप की क्षमा के लिए पिता आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you for redeeming us from hell. नरक से छुटकारा देने के लिए हमें आपको We धन्यवाद देते thank you हैं। for eternal life. अनंत जीवन के लिए पिता को We धन्यवाद देते thank you हैं। that our name is written in the Lamb's book of life in heaven. जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखा गया, पिता को धन्यवाद देते हैं We इसके लिए। thank you for giving us good health. अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं। We thank you, God, that you protected us from virus and sicknesses. हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक वायरस से पिता आपने हमें रक्षा करके Oh रखा है। God, we pray that you will bless your हम children. प्रार्थना करते हैं आपके हर एक बच्चों को पिता आशीष करिए, Lord, and give them boldness and courage. हर जन को साहस और सामर्थ से भर दे प्रभु जी। We pray that thou will strengthen them, O हम God. प्रार्थना करते हैं उन लोगों को सामर्थ से भर परमेश्वर। And, O God, we pray that thou will destroy the works of the evil that will come against और हम them. प्रार्थना करते हैं उन लोगों के विरुद्ध जो शैतान के कार्य आएंगे, हर एक चीजों को पिता तोड़ दीजिए प्रभु जी, Oh Lord, they may walk with the power of the Holy Spirit. ताकि उन लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ताकि उन लोग चल सके, And they will always have joy and peace in their life. ताकि उन लोग के जीवन में हमेशा आनंद ताकि हो सके। If there is anybody on the, oh Lord, those who are watching us online, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर we पिता, pray that thou will put an edge of protection around हम them. प्रार्थना करते हैं उन लोग के चारों ओर रक्षा करके रखिए प्रभु Bless जी। them, O उन लोग को God. आशीष करे परमेश्वर Heal पिता। them, O God. उन लोग को चंगाई दे परमेश्वर पिता। And bless their family, O उन लोग के God. परिवार को आशीष करिए प्रभु Provide जी। all their needs, उन O लोग के God. हर एक जरूरत को पिता पूरा करिए। Grant them boldness and courage from heaven उन लोगों को above सामर्थ्य और आशीष से भर प्रभु जी, to सब live for your name's sake, O आपके Father. नाम के लिए जीने के लिए प्रभु जी। Lord, help us to live for you. हमें मदद कर प्रभु जी ताकि हम आपके लिए जी सकें, For there is no other joy that we have on earth to live for. क्योंकि इस संसार में और कोई दूसरा आनंद नहीं हमारे लिए जीने के For लिए, you alone are our joy, O लेकिन God. केवल आप ही हमारे एक आनंद है प्रभु जी। You are our strength. आप हमारे सामर्थ्य है प्रभु जी, You are our life. और आप हमारे जीवन है परमेश्वर So पिता। bless your children now. आपके बच्चों को आशीष करे प्रभु जी, Thank you for this time. और ये समय के लिए पिता को धन्यवाद देते In हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, And all God's people said, आमेन and again, आमेन। Amen. God bless you.